Hello. So just wait. I will share your syllabus. The syllabus is available on the college website. Okay. So I will start from module number 3. That means measurement of. Yes. Hello. Hello. I am audible to everyone. Okay. So in the measurement in instrumentation, we have 5 modules. Module number 1, system fundamental, analog, ammeter, voltmeter, wattmeter, and from the third module I will taught you all the things. That means DC and AC bridge. In module number 3, in DC and AC bridge, there is a measurement of resistance, Wheatstone bridge, Kelvin double bridge, measurement of inductance, capacitance, Maxwell's bridge, Ricciuti bridge, Anderson bridge, sharing bridge, Wien bridge, and application and limitation. Okay. And in the module 4, the instrument transformer and transducer, and in module 5, the electronics instrument. Okay. So I will start from module 3. That means first topic is measurement of resistance. So first I will tell you that what is the importance of measurement and instrumentation, and what is the use of measurement. So in the measurement and instrumentation subject, you have to study how the resistance is measured, so and how the capacitance, inductance, frequency, for the measurement of frequency, which type of instrument is used. Okay. And for measurement of current, for measurement of voltage, for measurement of energy, for a measurement of power, which type of instrument, and what is the construction and working principle of the devices, and what do you mean by error in the measurement. So mostly in the measurement of resistance, which type of instrument is used? Please tell me. Hello. For the measurement of resistance, which type of instrument are used? Hello, I am audible to everyone. Sir, Megger and multimeter. Megger is used for high resistance. Okay, so for the measurement point of view, resistance are classified in 3 types: low resistance, medium resistance, and high resistance. So low resistance range from 0 to 1 ohm. That means very small resistance that cannot be measured using the common devices. That means, and medium resistance range from 1 ohm to 1 mega ohm, and high resistance from medium resistance from 1 ohm to 0.1 mega ohm, and high resistance from 0.1 mega ohm to infinity. Okay. So first of all, measurement in the measurement of resistance, how can you tell me how many types of resistor is available in your lab or in your life? Have you seen how many types of resistor? So there is for the measurement of resistance, the most common method used for the measurement of resistance using multimeter. You simply connect the resistor between the multimeter, and you can measure the resistance of the any resistor. Okay, but the accuracy is not, and accuracy is not good. So there is a many method for the measurement of resistance. For the measurement of medium resistance, the most common method is Wheatstone bridge, volt ampere method. So mainly in the multimeter, volt ampere method is used for measurement of any unknown resistance. We have to connect the
a resistor across the multimeter terminal, and there is a battery inside a multimeter. So from the battery there is a current flowing through the resistor, and the voltage of battery divided by current is equal to resistance that indicate in the multimeter display. The common method. So first I will tell you, just wait. Just wait. How many types of resistor have you seen in your life, or you can say that in the field? Just wait. Hello. So first, have you seen the electrical resistance in the TV or any electronics device? Hello. Hello. Yes, sir. Have you seen any resistor in TV or any electronics device? Yes, sir. So just wait, I will show you. So this type of resistor that is used in the electronics devices. So generally the color code is given here. That means there is a 4 color code, 1, 2, 3, 4, and 1 for the sometimes 4 color code, or you can see that there is a 4 band. Sometimes there is a 5 band, but mainly there is a common type in the four type of color band. So the color code is for BB Roy, Great Britain, very good wife. So that means black for 0, and brown indicates 1, red indicates 2, orange indicates 3, yellow indicates 4. Okay, green indicates 5, blue indicates 6, violet indicates 7, gray indicates 8, and white indicates 9. So from this color code you can find out the value of this resistor. So that means first digit color, suppose is red, that means red is equal to 2. Second digit indicates, suppose there is a orange color, then orange indicates 3, that means 2, 3, and third one is a multiplier. So suppose it is yellow, that means 10 to the power 4, because yellow indicates 4, and fourth one is tolerance. So generally the color for the tolerance use a gold or silver. That means for the gold 5%, and silver, that means for the 10%. That means suppose a total resistance of this resistor is equal to 22K, and there is a 5% tolerance. That means the resistance vary from plus minus 5% of 22K. Okay, so you cannot measure exact value of resistance of this resistor. You can say that this is the 22K because it made from the human being, so there is a variation in the resistance. So exact measurement either using from the multimeter method or from using the Wheatstone bridge. So apart from how many types of, कितना टाइप का रजिस्टर तुम लोग देखे हो? हेलो, ये हुआ जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है. हेलो हेलो. Yes, sir. तो ये जनरली इसका कॉस्ट जो है 1 रुपया 2 रुपये के आसपास मिलता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी में, रेडियो में, या फिर बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक छोटा छोटा चिप रहता है उसके अंदर ये रजिस्टर को देखने को मिल जाएगा. और इलेक्ट्रिकल सर्किट में तुम लोग देखे होंगे देयर इज ए वेरिएबल रजिस्टर, है ना. और इवन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वेरिएबल रजिस्टर जो होता है, कौन कौन देखे हो वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको पोर्ट कहते हैं. देखो इस तरह का रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, है ना.
ये पोर्ट जो है उसको या यू कैन से दैट ये देखो इस तरह का पोर्ट जो वेरिएबल टाइप ऑफ रजिस्टर यूज होता है टीवी के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, है ना। और इसको जब वैरी करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वैल्यू वैरी करता है बिटवीन द टू इन टर्मिनल। रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 के रहता है, सपोज इसके बीच में 10 के है, जब इसको वैरी करेंगे तो ये 0 से 10 के बीच में वैरी करता है। इस तरह का रियोस्टेट तुम लैब में देखे होगे। हेलो, Yes, sir. इस तरह का देखो, इस तरह का रियोस्टेट जो है वो तुम लैब में देखे होगे, जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है ना, वो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए, दैट मींस लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो लेंथ जो है वो इसके थ्रू वेरी करता है और हम लोग को वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलता है, जो तुम लोग लैब में देखे होगे, द मशीन लैब और बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब, इस तरह का तुम लोग देखे होगे। सो अब आते हैं ये डिफरेंस टाइप ऑफ, देखो इस तरह का नॉब है जो कि रहता है, जैसे तुम लोग की मतलब रेडियो में देखे होगे, पहले के टाइम में रेडियो में एक नॉब रहता था जो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए, वो मेनली इस तरह का रजिस्टर रहता है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके वॉल्यूम बढ़ाते या घटाते हैं या चैनल को बदलते हैं। ओके, और जैसे और बताओ वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल तुम बताओ। तुम्हारे टीवी के तुम्हारा फैन का जो रेगुलेटर रहता है उसमें भी यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर हेलो वेरिएबल रजिस्टर रहता है, जिसको हम लोग वैरी करके फैन का स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो नाउ ये हो गया टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस का मेजरमेंट। ओके, सो हम हेलो, सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम बताएं कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, हम लोग जो है फ्रॉम द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस दैट मींस 0 to 1 ओम, बिकॉज जो मेथड हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करेंगे उससे लो रेजिस्टेंस मेजर नहीं होगा, और जो लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए करेंगे उससे मीडियम रेजिस्टेंस मेजर नहीं होगा। तो सबका अपना अपना एक कन्वेंशनल मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। एंड ओके, सो लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है 0 to 1 ohm, मीडियम रेजिस्टेंस वेरी फ्रॉम 1 to 0.1 मेगा ओम, है ना, and from the 0.1 mega ohm onward is called high resistance. So first I will tell you that means the measurement of medium resistance. Medium resistance from that means 1 ohm to 0.1 ohm, जो भी तुम रेजिस्टर देखते हो उसको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस करते हैं। हाई रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग मेगर का यूज करके उसको मेजर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम लोग मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। So there is a 4 method for the measurement of medium resistance. First one is ammeter voltmeter method. Second one is substitution method. Third one is Wheatstone bridge method. This is the most popular method for the measurement of medium resistance. And fourth one is the ohm meter. That means for the measurement of medium resistance, we have to use any one of these methods: voltmeter, ammeter method, substitution method, Wheatstone bridge method, or ohm meter. Okay, so one by one I will discuss those methods. First method is ammeter voltmeter method for the measurement of medium resistance. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this is the very simple method for the measurement of a medium resistance. That means ammeter voltmeter method. That means you know, the suppose if you apply a voltage across any resistor, so the voltmeter is measure the voltage across this resistor and ammeter measure the current. So voltage divided by current is equal to
value of unknown resistance. Okay, yep, this method used in the multimeter. Okay, so suppose R is unknown resistance, that means you have to measure, and you have applied one voltage source across the R, and we have to connect one voltmeter, and we have to connect ammeter. So in the measurement subject, accuracy is most important. Okay, so accuracy and error is one of the important factor, because suppose one resistor have resistance equal to 1.1 kilo ohm, but using the using the different method, the value of measurement are changing. Okay, so suppose मैं voltmeter ammeter method में 1.1 ohm की जगह 1.2 ohm आ गया. Okay, and Wheatstone bridge method के थ्रू 1 ohm आ गया. So हम लोग को एक्चुअल वैल्यू के आसपास जो है, दैट मींस जिस मेथड में मिनिमम एरर आएगा, है ना, उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट आए. बिकॉज तुम एक सिंपल सोच सकते हो कि 1 ओम का एक 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है, उसको हम 1.1 किलो ओम कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है. मेनली अगर तुम एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.1 किलो ओम की जगह पे 1.1 किलो ओम कर दोगे तो सारा कैलकुलेशन, करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू, तुम्हारा जो भी तुम अप्लाई करोगे वो सारा चीज चेंज हुआ है. दैट मींस एक्चुअल हर चीज डिफरेंट जाएगा. दैट मींस हर चीज में वेरिएशन आएगा, हर चीज में एरर आएगा. सो किसी भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है. ओके, हेलो, आई एम ऑडिबल टू? Yes, sir. दैट मींस एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है. सो जैसे हम यहाँ बताएं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस वी हैव टू कनेक्ट वन वोल्टेज सोर्स, एंड when the voltage source is connected with unknown resistance R, so the current flowing, then we have to measure the voltage across the resistance and current across the resistance. So there is a two way of connection for the voltmeter and ammeter. First, either you have to connect voltmeter first and ammeter then ammeter, or second way we have to connect first ammeter and then voltmeter. दोनों में क्या डिफरेंस है? हेलो, दोनों में क्या डिफरेंस है? So that means, hello, I am audible to everyone? Yes, sir. Yes. So the first voltmeter will read voltage along with voltage of R along with ammeter, and the second one will just So both the method can be used for the measurement of unknown resistance. But what are the difference? क्या हम लोग का डिफरेंस आएगा वो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम बताएं कि जब मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, सो जितना एक्यूरेट और जिसमें जितना कम मिनिमम एरर आएगा वो हम लोग को ध्यान देना है. सो वोल्टमीटर एमीटर मेथड में हम लोग देखें यहाँ पे या तो वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, तो बी मेथड हो जाएगा, या फिर एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं. इसलिए आएगा ये दोनों ही कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू में जो वेरिएशन आएगा वो हम तुम लोग को दिखा रहे हैं. ओके, सो यू नो दैट सपोज यू हैव टू यूज वन एमीटर और वन वोल्टमीटर, so they have their internal resistance, you know that. Suppose you have to use ammeter in series with unknown resistance, so due to internal resistance of the ammeter, okay, internal resistance of the ammeter, there is a voltage drop across the ammeter, yes or no? So, and if you connect voltmeter in parallel with the resistance, so due to
internal resistance of voltmeter, some part of the current is divided in voltmeter. So in both the case there is a chance of error. So we have to observe how the value are changing. So that means for the measurement of resistance, we simply said that measure value of resistance is equal to voltmeter reading by ammeter reading. So first I will discuss the case one. That means first we have to connect voltmeter, then you have to connect ammeter in series with the unknown resistance. Okay. So case one, in this circuit, ammeter measure the true value of current, but voltmeter does not measure the true value of the resistance. Yes or no? यहाँ पे जो एमीटर है वो एक्चुअल करंट को मेजर करेगा, क्योंकि कोई भी करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है. जो भी करंट आएगा वो सिंपल जो करंट का जो वैल्यू होगा रजिस्टर के क्रॉस उसको मेजर करेगा. बट वोल्टमीटर रीडिंग जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एमीटर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर दोनों का समेशन मेजर करेगा. यस और नो? हेलो, yes, Yes, or no? sir. Okay, that means voltage voltmeter जो होगा वो एक्चुअल रीडिंग जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है उसको मेजर नहीं करेगा, along with the voltage drop in the ammeter को भी मेजर करेगा. Okay, voltage indicates sum of the voltage across ammeter plus measured resistance. So suppose let RA be the resistance of ammeter. So measure value कितना हो जाएगा? V by measure value of resistance is equal to क्या हो जाएगा? V by I. That means VR plus VA by I. What is VR? Voltage drop across unknown resistance. And what is VA? Voltage drop across the ammeter. So that means total measure value of resistance. Total measure value of resistance is equal to R plus RA, where R is the actual resistance and RA is the internal resistance of the ammeter. Yes or no? Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, So you can say that actual resistance is equal to measure resistance minus resistance of ammeter. And if you calculate the relative error, so relative, what is the formula of relative error? Relative formula of relative error is equal to measured value minus actual value divided by actual value is called relative error. Suppose actual resistance है 100 ओम और मेजर करने के बाद आया 105 ओम. सो तुम्हारा एरर कितना हो गया? 105 minus 100 divided by 100, that means 5%. तो हम लोग का एक्चुअल रेजिस्टेंस 100 ओम था, लेकिन वो तुम्हारा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर तुम्हारा वहां पर रिलेटिव एरर. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन calculate the relative error of voltmeter ammeter method. Okay, any problem till now? इन सेकेंड मेथड हम लोग क्या किए हैं? इन सेकेंड मेथड में क्या है कि हम लोग को वोल्टमीटर को कनेक्ट किए हैं अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड उसके पहले हम लोग को एमीटर मेजर किए. तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर होगा वो एक्चुअल रीडिंग मेजर करेगा, तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस के क्रॉस. और एमीटर में जो आएगा, जो एमीटर जो करंट मेजर करेगा वो एक्चुअल करंट नहीं मेजर करके बल्कि दो करंट को मेजर करेगा. दैट मींस एक्चुअल करंट प्लस करंट ड्रॉन बाय द एमीटर, सॉरी वोल्टमीटर. यस और नो? So suppose RB be the resistance of voltmeter, So meter is the value of measurement, that means V by I, that means V is equal to applied voltage divided by current. So current have two parts,
one part is voltage across resistance plus voltage across current across resistance plus current across voltmeter. So major value of resistance is Rm2 is equal to R by 1 plus R by RB. तो ट्रू वैल्यू जो है हमारा कैसे निकलेगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर रेजिस्टेंस इनटू आरबी डिवाइडेड बाय आरबी माइनस R2। और अगर आरबी जो होता है एमीटर का जो तुम्हारा सॉरी वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सो यू कैन डायरेक्टली से दैट R इज इक्वल टू RM2 प्लस इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस RM2 बाय RB। और इस जगह पर रिलेटिव एरर जो आएगा RM2 माइनस R बाय R, दैट मींस रिलेटिव एरर इक्वल टू आएगा माइनस R बाय RB। सो दोनों ही केस में कुछ ना कुछ एरर आएगा, यस और नो। दोनों मेथड समझ में आया? हेलो, दोनों ही मेथड समझ में आया? हेलो सर रिलेटिव एरर एक बार बता दीजिए ना फिर से। तो ओके, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर जब सर मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल्स में बताएंगे। रिलेटिव एरर होता है मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। सो जैसे पहला केस नंबर 1 में हमारा मेजर वैल्यू का कितना था, R प्लस RA, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का R। सो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, दैट मींस हो जाएगा RA डिवाइडेड बाय R। यहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग पहले एमीटर कनेक्ट किए थे, बाद में वोल्टमीटर कनेक्ट किए थे, तो मेजर वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया था, मेजर वैल्यू इक्वल टू आया था R by 1 plus R by RB, where RB is the resistance of voltmeter. Okay. So यहां से हम लोग ट्रू वैल्यू निकाले। ट्रू वैल्यू जब इसको हम लोग सॉल्व किए, सो ट्रू वैल्यू इक्वल टू उसको अप्रोक्सीमेट करने, मतलब उसको जब मॉडिफाई किए, सो RM2 दैट मींस मेजर वैल्यू यूजिंग द वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग डिवाइड इनटू 1 by 1 minus RB by RM2 by RB। सो हमको पता है कि RB जो होता है, जनरली तुम जब वोल्टमीटर एंड एमीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बहुत ज्यादा होता है। सो यू नो दैट RB is more as compared with the major resistance, so you can say that the actual resistance is equal to RM2 plus into 1 plus RM2 by RB। सो अगर तुमको मान लो एक्चुअल रीडिंग निकालना है, सो मेजर वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल दो, और अगर तुमको वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पता है तो तुम एक्चुअल रीडिंग यहाँ पर निकाल मॉडिफाई करके निकाल सकते। तो नाउ आते हैं हम लोग, मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ट्रू वैल्यू। सो रिलेटिव एरर क्या आएगा, मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू बाय R। सो जब हम लोग मेजर वैल्यू का यहाँ पे जो वैल्यू है, दैट मींस मेजर वैल्यू हमारा क्या आया था, मेजर वैल्यू हमारा आया था ये वाला, मेजर वैल्यू आया था R by 1 plus R by RB। सो जब हम लोग यहाँ पे डाल दिए माइनस R by R, जब इसको सॉल्व किए, सो RM स्क्वायर बाय RB इंटू R, और जब उसको हम लोग मॉडिफाई किए तो यू कैन से दैट माइनस R by RB के बराबर आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो ये एक मेथड है जो तुम किसी भी लेबोरेटरी में बेसिक इलेक्ट्रिकल या मशीन लैब में तुम ये लैब परफॉर्म कर सकते हो। जिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर एमीटर मेथड। एक वोल्टमीटर एंड एमीटर को कनेक्ट करके रिमेजर कर सकते हो, एंड यू नो कहाँ पर हमको करेक्शन करना है, किस जगह पर करेक्शन करना है वो तुमको पता होगा, तो अगर तुम आसानी से तुम एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम लोग एमीटर को सीरीज में रखते हैं, उसके पहले वोल्टमीटर लगाते हैं, तो हमारा एक्चुअल रीडिंग में क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग होगा वोल्टमीटर एमीटर का रीडिंग माइनस
एमीटर का रीडिंग, एमीटर का रेजिस्टेंस को माइनस कर दूं, इससे हमारा एक्चुअल रीडिंग आ जाए। बट ये जो एरर आता है वो एज कम्पेयर टू बहुत ज्यादा नहीं आता है। अगर हमको एग्जैक्ट रीडिंग लेके आना है तो फिर हम लोग दूसरा मेथड में जाते हैं। तो हम लोग देख लिए वोल्टमीटर एमीटर मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ पर एरर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये किसी भी लैब में तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब या मशीन लैब में एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो कि हमारा मेजर वैल्यू जो है वो आ रहा है, या मतलब मेजर में ये जो वोल्टमीटर एमीटर मीटर है उसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर पा रहे हैं। एंड सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हम लोग ये सेकेंड मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। सपोज capital R is unknown resistance, its resistance have to be measured using this method, and S is the standard variable resistance, and here is one ammeter, and R is the regulating resistance. So यहाँ पर जो R है जिसका रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है, और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमको पता है, और इस R जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और सबको एक साथ सीरीज में करके एक हम लोग बैटरी सोर्स या एक डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, so there is a switch for putting R and S into circuit alternate। यहाँ पर एक स्विच है जो कि एक बार S के पास जाएगा, एक बार R के पास जाएगा, वो चेंज होते रहेगा। तो देखो ये किस तरह से काम करता है। द स्विच, हेलो हेलो Yes, sir. हेलो, ये जो हम लोग अभी मेरा भी 2 क्लास है, सो अभी एक क्लास हम ले रहे हैं, फिर 4 बजे या रेगुलर क्लास अभी तुरंत करोगे? ठीक है, हेलो। जी सर 4 बजे। ओके, 4 बजे से कोई क्लास नहीं है ना, तो फिर 4 बजे से हम लोग क्लास करेंगे। ओके, सो ये Okay. जो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एंड एक वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस रखते हैं, और यहाँ एमीटर में कनेक्ट करके सभी को हम लोग एक डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये मेथड कैसे काम करता है। द स्विच इज पुट एट द पोजिशन resistance R is connected, the regulating resistance R is adjusted till the ammeter pointer is at the chosen scale mark. Now the switch is thrown to the position 2, putting the standard resistance in this circuit. Okay, देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। हेलो, सपोज हमारा एमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करके अननोन रेजिस्टेंस के साथ हम लोग एमीटर को कनेक्ट करके उसको एक मार्किंग पॉइंट तक लेके आते हैं। सपोज हमारा एमीटर का रीडिंग अभी शो कर रहा है 10 एम, बट हमको अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्विच 1 को शिफ्ट करते हैं स्विच 2 पर, बिकॉज ये हमको मेजर करना है, उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस पोजीशन पे अभी जो करंट, उस अननोन रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट था वो हमारा 10 एम्पियर है फॉर एग्जांपल। अब हम लोग एक नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल जो रहता है मतलब उसको वेरी करते हैं, 1 ओम 10 ओम 15 ओम 20 ओम, उसमें हम लोग कनेक्ट कर करके देखते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो किस जगह पर 10 एम्पियर के आसपास 10 एम्पियर आ रहा है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमारा 10 एम्पियर का जो वैल्यू है, मतलब अगर सपोज यहाँ पे 10 एम्पियर 5 किलो ओम के पास आया, डेट मीन्स हमको पता चल गया कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो 5 किलो ओम है। ये मेथड समझ में आया या नहीं आया?
हेलो, सर रिपीट करिए। रिपीट करें। ओके, सो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस जो होता है, हेलो, इसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से क्लास अभी ज्वाइन कर लो, तो ये लिंक में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? अभी क्लास कर लेना। हेलो, यस सर। 10 मिनट के बाद अभी क्लास कर लेना, कि उस समय बार बार आने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ओके मेथड में हम सर। लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन